Welcome back. You're watching DD India Live. I am Tanvi Taneja. Here are the headlines we are tracking at this hour. In a boost to infrastructure in the National Capital Region, Prime Minister Narendra Modi inaugurates two major national highway projects aimed at providing multimodal connectivity and decongesting Delhi. India's space hero Shubhanshu Shukla returns home after his historic ISS mission. Union Minister Dr. Jitendra Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and students accord a grand welcome to Shubhanshu at the Delhi airport. Another cloudburst in Jammu and Kashmir, 4 dead in Kathua's Janglot area, major infrastructure damaged, rescue operations underway. Trump tells Zelensky that Putin wants more of Ukraine, urges Kiev to make a deal. Zelensky to visit Trump on Monday with European backup. And the Air Canada strike ends after government intervention. Flight attendants asked to seek arbitration. Air Canada says restarting operations after over 100,000 passengers affected by work stoppage. US President Donald Trump on Saturday dropped his push for a ceasefire in Ukraine in favor of pursuing a full peace accord. This is a major shift announced hours after his summit with Russian President Vladimir Putin yielded no clear breakthrough. Prior to the high-stakes meeting in Alaska, securing an immediate cessation of hostilities had been a core demand of Trump. He had even threatened severe consequences on Russia and European leaders. The shift away from ceasefire would seem to favor Putin, who has long argued for negotiations on a final peace deal. But Ukraine and its European allies have criticized this strategy as a way to buy time and press Russia's battlefield advances. Donald Trump spoke with Zelensky and European leaders on his flight back to Washington, saying afterwards that it was determined by all that the best way to end the horrific war between Russia and Ukraine is to go directly to a peace agreement which would end the war. In the call, Trump expressed support for a proposal by Putin to take full control of two largely Russian-held Ukrainian regions, Donetsk and Luhansk, in exchange for freezing the front line in Black Sea port region of Kherson and Zaporizhia. But Zelensky has refused to leave Donbass. The main diplomatic focus now switches to Zelensky's talks at the White House on Monday. A number of European leaders have also been invited to attend. Further, the leaders of France, Britain and Germany are due to host a video call on Sunday for their so-called coalition of the willing to discuss the way forward. Though the conflict in Ukraine rages on, with Kiev announcing on Saturday that Russia had launched 85 attack drones and a ballistic missile during the night. In an earlier statement, they welcomed the plan for a Trump-Putin-Zelensky summit, but added that they would maintain pressure on Russia in the absence of a ceasefire. Trump notably also said that the United States was prepared to provide Ukraine security guarantees, an assurance German Chancellor Friedrich Merz hailed as significant progress. Merz said that Trump had indicated that Russia seemed ready to negotiate based on the front lines of the conflict rather than the borders of Ukrainian regions, it claims. Soll es weitere Gespräche geben am Montag in Washington zwischen Präsident Trump und Präsident Zelensky. Dann möglichst bald ein trilaterales Treffen, also mit den 3 Präsidenten Trump, Zelensky, Putin, um dann ein schnelles Abkommen herbeizuführen. Wenn das gelingt, ist das mehr wert als ein Waffenstillstand, der möglicherweise über Wochen andauert, ohne weitere Fortschritte in den politischen, diplomatischen Bemühungen. Back in Moscow, Putin said his summit talks with Trump had been timely and very useful. In a televised meeting of senior officials in the Kremlin, Putin said Russia respected the US position on the conflict with Ukraine, which he said Moscow seeks to end peacefully. While in his post-summit statement in Alaska, Putin had warned Ukraine and European countries not to engage in any behind-the-scenes intrigues that could disrupt what he called this emerging progress.
We talked about almost all areas of our cooperation. But first of course, we talked about possible settlement of Ukrainian crisis on a fair basis. And of course, we had the opportunity, which we did, to talk about the genesis, cause of this crisis, and it is the elimination of these root causes that should be the basis of for a settlement. However, after the Trump Putin Alaska summit, global reactions have been mixed. Leaders and citizens from both sides voiced concerns about the lack of clear outcomes, highlighting the ongoing tension and the uncertain path ahead for peace. And now let's take you to New Delhi again, where Prime Minister Narendra Modi is about to inaugurate the National Highway projects. He is in Bahadurgarh currently and is inspecting these national highway projects. He's set to inaugurate the two projects, Dwarka Expressway and the Urban Road Extension Project 2. Thereafter, he is expected to arrive at the Mundka section of the urban road. Okay. The Prime Minister is in Bahadurgarh, as we see on our screens. These are the newly built roads. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, Road and Highways Minister Nitin Gadkari, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini also with the Prime Minister. These are the 3D road model that the Prime Minister is inspecting. What is expected thereafter is Prime Minister Narendra Modi going to address the gathering near the Mundka section of the road, Urban Road Extension Project number 2. So all these projects will decongest the National Capital Region. These have been developed at a combined cost of 11,000 crore rupees. A major push for Delhi's infrastructure. So these road projects worth about 11,000 crore rupees are connected to Haryana under the Urban Extension Road 2 initiative. These will free the National Capital Region from traffic jams and connectivity challenges. They would also serve as a vital four-lane link between Delhi NCR and Haryana's industrial clusters. Earlier, Haryana Chief Minister Saini said that the projects would ease transport and also unlock fresh opportunities for trade and employment. Calling these projects a testament to the double-engine government's commitment to building world-class infrastructure. The Chief Minister expressed gratitude to Prime Minister Modi for keeping Haryana's development in special focus. And of course, we also see Delhi Chief Minister Rekha Gupta inspecting these models here. So these projects will improve connectivity, both for commuters and for the industries in the region. These projects will speed up goods movement across regions, decongesting the inner and outer ring roads of New Delhi as well.
So, Prime Minister Narendra Modi is set to inaugurate these major highway projects in New Delhi. These projects, the Alipur Dichau Kala stretch of urban extension road 2 project and its new links to Bahadurgarh and Sonipat, developed at a cost of around 5,580 crore rupees. This is expected to divert heavy traffic away from Delhi's inner and outer ring roads and ease congestion at bottlenecks like Dholakua, Mukarba Chowk and NH09. The new spurs will improve industrial connectivity and movements of goods in the national capital and its adjoining areas. The Prime Minister at the Bahadurgarh section interjection of this project, and what is expected later in the day, an address from Prime Minister Narendra Modi at the Mundka section of the UER2 project. So, traffic advisory was issued in the national capital earlier. Vehicular movement is barred on UER2 Rohtak Road from Piragadi to Tikri border and connecting roads. So, road closures are also announced for the Bhagwan Mahavir Road, Bhavana Road, Kanjhavla Road due to the inauguration of these projects. Delhi police urged commuters to plan their journeys in advance and wherever possible use Delhi Metro. These traffic restrictions are in place till 2 p.m. local time. Prime Minister Narendra Modi earlier also tweeted about this mega infrastructure push in the national capital. He called it in line with the vision to improve ease of living. So, this 2,000 crore rupee road project will ease connectivity to Sonipat and Bahadurgarh in Haryana. So, the total projects to be inaugurated by the PM today are part of 2 packages. Package 1 includes 5.9 km from Shivmurti intersection to the road under bridge at Dwarka sector 21, and package 2 is 4.2 km stretch from Dwarka sector 21 to the Delhi-Haryana border, providing direct connectivity to urban extension road 2. The Prime Minister is accompanied by Union Minister Nitin Gadkari, Delhi Chief Minister Rekha Gupta. And ahead of the inauguration, Prime Minister Modi also interacted with the Shramjeevis, the construction workers of these projects.
So, Prime Minister Narendra Modi on way to the address expected near the Mundka section of the UER2 project. Thousands of people gathered here to welcome the Prime Minister.
सज्जनों, आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः नमस्कार। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के लोकार्पण का आज ये अति शुभ दिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से राष्ट्रीय महत्व की 2 परियोजनाओं का भव्य लोकार्पण यहां होने जा रहा है। आइए एक बार पुनः आप सभी की सम्मान और ऊर्जा से भरी करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की। साथ ही यहां विराजमान है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी और हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार में मंत्री माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, आशीष सूद जी, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, रविंद्र सिंह इंद्राज जी और कपिल मिश्रा जी, माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, रामवीर सिंह विदोड़ी जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी और बंसरी स्वराज जी, इन सभी विभूतियों का और आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, आज का ऐतिहासिक दिन, जिस युग प्रवर्तक नेतृत्व के कारण यह सब कुछ संभव हो सका है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए और दूर दूर तक जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस अवसर पर पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन वंदन करें। वो पगड़ी जो हमारे मान सम्मान की पहचान भी है और प्रतीक भी है, और इसमें आपके करतल ध्वनि, आपकी तालियों की ऊर्जा शामिल होनी चाहिए। देवियों सज्जनों, ये अवसर हम सबके लिए अभूतपूर्व है, विलक्षण है, ये पल पल हम सबको प्रेरित कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को श्री राधा कृष्ण की युगल काष्ठ मूर्ति भेंट करें स्मृति चिन्ह के रूप में। ये मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनी है, जिसमें बांसुरी अधरों पर सजाए श्री कृष्ण और कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम के भाव को प्रकट करती राधा का मनोहारी स्वरूप है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अब मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को कि वे यहां आकर आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें अपने स्वागत संबोधन के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। भारत माता की। ऐसे मजा नहीं आएगा भाई, मालूम है ना, मंच पे हमारे समक्ष इस देश के सिरमौर, हमारे दिलों पे राज करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आज सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में यहां पर हैं। आदरणीय दिल्ली के एलजी महोदय श्रीमान विनय सक्सेना जी, हमारे मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, भाई अजय टम्टा जी, दिल्ली के
प्रथम नागरिक दिल्ली के महापौर आदरणीय भाई इकबाल सिंह जी, यहां पर उपस्थित सरकार में मेरे साथी मंत्री और हमारे सभी माननीय सांसद, सभी लोग मिलकर के आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है। मैं चाहूंगी पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करे, जिन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं माननीय जी का, जो कि सौम्य चेहरे के देश का नेतृत्व कर रहे ऐसे विकास पुरुष हैं, जिनका हर जीवन का क्षण और शरीर का हर कण देश के जन जन को सुख और समृद्धि देने वाला है। भारत को प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करते जाने में आपका अटूट समर्पण सदैव ये देश और दिल्ली याद रखेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की जनता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने हर दिशा में प्रगति करने के लिए देश को अभूतपूर्व विचार दिए। हमने देखा कि आपने अपने निर्भीक निर्णयों के साथ देश को ऐसी सुरक्षा दी जिसमें हर नागरिक के दिल में आत्मविश्वास और गर्व से अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। और आज उसी विकास की राह पर बढ़ते हुए राष्ट्र के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही है। मैं दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। केवल नारों में नहीं और केवल जयकारों में नहीं, आप सच्चाई के धरातल पर इस देश के विकास पुरुष हैं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए,
उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा। इतना ही नहीं, वैचारिक विरोध में उन्होंने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, हर सीमा लांघ दी। कहीं नहीं देखा कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। अब शब्दों का भंडार था उनके पास, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने इन सब के बावजूद भी कभी दिल्ली से मुंह नहीं मोड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने कभी दिल्ली के साथ भेदभाव नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने बार बार ये साबित किया कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की दिल की धड़कन है, और इसलिए आपने अनेकों योजनाएं जिससे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दिल्ली को प्रगति मिली, दिल्ली को विकास मिला, आपके माध्यम से शुरू हुई। और ये सारी की सारी योजनाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी, ये मैं विशेष रूप से बताना चाहती हूं। आपने दिल्ली के हक का एक एक पैसा, दिल्ली को जनता को मिलने वाली एक एक सुविधा अनवरत जारी रखी, और आज भी वो सारी सुविधाएं जारी हैं। अमृत योजना में आपने दिल्ली को 940 करोड़ रुपए हर साल दिए। आपने स्वच्छ भारत मिशन में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। आपने कोविड महामारी में दिल्ली के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा तंत्र दिया। आपने पूरी दिल्ली में मेट्रो की 400 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी रेल की पटरियां बिछा दी, जिसमें कि तत्कालिक सरकार ने 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया, कभी अपना हिस्सा नहीं दिया। मैं इस जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं, आपने RRTS के माध्यम से दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद सारे शहर आपस में जोड़ दिए। आपने PM अभीम योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से दिल्ली का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन संवरना था, वो दिए, परंतु पिछली सरकार ने उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने शासकीय के माध्यम से 821 करोड़ रुपए दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 750 करोड़ रुपए दिए। मुझे अफसोस है, ये सारा फंड कभी भी पिछली सरकार के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के द्वारा दी गई ये सारी सहायता वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। केवल दिल्ली की बात ही क्यों करूं, आपने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली को गति दी, वो काबिले तारीफ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण, 8 लेन टनल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इसमें शामिल है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आपने दिल्ली को दिए। बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसा बड़ा स्टेशन नया, जिसकी आधुनिक पुनर्निर्माण योजना को आपने साकार किया। मेट्रो के नए फेजेस, नई सड़कों के परियोजनाओं को और उससे पूरी इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को आपने जोड़ा है। हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास को नई राह आपने दी है, NCR को दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज फिर एक नई राह पे आप दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का उद्घाटन करके आपने दिल्ली की रफ्तार को नए पंख दिए हैं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से आपका, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, पूरे केंद्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद करती हूं। आपने तो वो कर दिखाया जो दिल्ली की जनता को कभी सामने भी नहीं आया। मुझे ध्यान है, यहां पे हजारों लाखों मीट्रिक टन कूड़ा जो कि NHAI की सड़कों के नीचे आप लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कभी दिल्ली की जनता को बताया नहीं गया। उसके बावजूद भी तत्कालिक सरकार कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं कर पाई, जबकि आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने न केवल सड़कें बनाई दिल्ली में, बल्कि उन सड़कों के नीचे
लाखों टन दिल्ली का कूड़ा मलबा दबाया और दिल्ली को स्वच्छता की अगली सीढ़ी पे चढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुकरबा चौक, धौला कुआं, NH8 जैसे ट्रैफिक जैम के हॉरर पॉइंट कभी आसानी से पार हो पाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि सिंधु बॉर्डर से एयरपोर्ट तक का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा होगा? सोचा था आप लोगों ने? नहीं सोचा था, तो अब करके दिखाया है हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि दिल्ली में एक छोर से दूसरे छोर जाने का सफर इतना सहज और तेज हो जाएगा, ये दिल्ली ने कभी सोचा नहीं था। पिछली सरकारों ने तो दिल्ली को रोंगने के लिए, रेंगने के लिए, घिसटने के लिए छोड़ रखा था। आपकी दूरदृष्टि ने, आपके संकल्प ने दिल्ली को रफ्तार दी और दिल्ली को गति दी। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि आपने संकल्प से सिद्धि की तदबीर को इस देश की तकदीर में बदल दिया है। आपने अपनी नई सोच, अथक परिश्रम से इस देश की तरक्की की नई राहें खोल दी है। आपके इस अटूट सहयोग और दिल्ली के भविष्य को बदलने की प्रतिबद्धता के लिए मैं दिल्ली वासियों की ओर से आपके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली का गौरव और दिल्ली का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, इस बात का हमें विश्वास है। आज दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, थैंक यू मोदी जी। मेरे साथ मिलके बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारत के लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, हमारे भारत सरकार के परिवहन एवं सड़क मंत्रालय के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, अजय टम्टा जी, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली के हमारे सभी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण, आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है, मैं हरियाणा की तरफ से, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं।
मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। इन पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं जिससे इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 40 लाख करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आपका दिल से हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और अन्य अतिथियों का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह प्रयास, आपका यह विजन विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपकी दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अब आपने स्वदेशी का जो मार्ग दिखाया है, मुझे विश्वास है, हम सबको ये विश्वास है कि उस पर चलते हुए हम तेजी से भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनेगा। पिछले दिनों पूरी दुनिया ने सिंदूर ऑपरेशन से हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं और वहां कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य प्रगति के ऊपर हमें दिखाई देता है। चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, बड़े पुल हो या बंदरगाह का विकास हो, देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला और सागरमाला तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जैसे रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आप दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो विशेष रूप से मैं आपका आभारी हूं कि आपने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का भी विशेष आपने ध्यान रखा है। यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है। आपने अपने हमें कई बड़ी सौगातें दी है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुसेजर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर और फरीदाबाद पलवल मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने ही बनाया है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आपके कर कमलों के द्वारा, आपके आशीर्वाद से हमें हरियाणा में रेवाड़ी में एम्स जैसी बड़ी सुविधा आपके कर कमलों से मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही आपने रिठाला से कुंडली तक जो मेट्रो कॉरिडोर की सौगात हमें दी है, उसके लिए भी हरियाणा आपका दिल से आभारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हरियाणा को प्रदेश में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं और इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। इनके बनने से प्रदेश का विकास भी जिला ऐसा नहीं बचेगा हमारा हरियाणा का जिस जिला को 4 लाइनिंग रोड की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय मार्ग से न जुड़ी हो।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा को उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब है। आज शुरू की गई परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई होगा तो वो हरियाणा होगा। इनमें कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक की सीधी कनेक्टिविटी हमारे निर्यात, आयात और निवेश को अभूतपूर्व गति देगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा के विकास में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप सभी केंद्रीय मंत्रीगण का आभार व्यक्त करता हूं। आपने हरियाणा को जो एक बड़ी सौगात आज दी है, इसके लिए मैं पुनः हरियाणा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का। दिव्य सज्जनों, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव बल दिया है और इस दिशा में हमें सबको प्रेरित भी किया है। महोदय, आपके इसी विजन के अनुरूप ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस दिशा में अपनी पूरी गति और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री नितिन गडकरी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नायब सिंह जी, आदरणीय विनय कुमार जी, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, मेरे सहयोगी अजय टमटा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे सहयोगी सभी सांसदगण, दिल्ली के महापौर और उपस्थित सभी हरियाणा और दिल्ली के उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन विशेष रूप से हमारे विभाग के लिए बड़ा अभिमान का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे विभाग की मीटिंग ली थी और उन्होंने ये लक्ष्य दिया था कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमारे विभाग ने योजना बनानी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं थी, हर जगह ट्रैफिक जाम था, प्रदूषण की समस्या भी काफी तीव्र थी। सिंधु बॉर्डर से मुकरबा चौक से धौला कुआं होकर गुरुग्राम तक जाना, यह ट्रैफिक जाम के कारण लगभग मुश्किल था और इसी के कारण इन सब समस्याओं का अध्ययन करके आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं हमको दी थी, उसके आधार पर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का संकल्प करके हमने दिल्ली कंजक्शन का एक प्लान बनाया था। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना और प्रदूषण से भी मुक्त दिल्ली बनाने का लक्ष्य हमने सामने रखा। मुझे बहुत खुशी है कि पहले स्टेज में हमने 65,000 करोड़ की लागत से काम शुरू किए, आज 48,000 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए। उस समय दिल्ली का पेरिफेरल रिंग रोड एक्सप्रेस हाईवे सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ध्यान दिया था और बड़े मुश्किल से अनेक समस्या होने के बाद में भी हमने उसको पूरा किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली में आने वाली भारी यातायात को डाइवर्ट किया गया। बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए अर्पित किया, इसमें कम से कम 4 घंटे मेरठ से दिल्ली आने के लिए लगते थे, आज 45 मिनट में हो गया। मुकरबा चौक से सोनीपत तक और धौला कुआं से गुरुग्राम तक ये भी बड़ा ट्रैफिक जाम प्रदूषण की समस्याग्रस्त भाग था, उसको भी सिग्नल फ्री किया गया। विशेष रूप से ये UR2 है, ये और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे
ये दिल्ली के मास्टर प्लान में 2001 में प्रस्तावित थे, पर पिछले सरकार ने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की। आदरणीय परवेश जी जब सांसद थे, अनेक बार मेरे पास आकर उन्होंने इसकी मांग की। मैंने कहा इसका संबंध मेरे विभाग से नहीं आता। बाद में काफी आग्रह होने के बाद जब ध्यान में आया कि ये काफी महत्वपूर्ण है, तब UR2 का कार्य NHAI ने अपने हाथ में लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके विशेष अनुरोध पर हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भी हमने हाथ में लिया। ये दोनों ही प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स है। इसकी अनेक विशेषता है। स्टेट ऑफ आर्ट तो प्रोजेक्ट है ही, पर वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है। टनल में एक रोड है, उसके नीचे और एक रोड है, और एक ब्रिज पर 4 लेन के रोड बने हुए हैं। इस प्रकार का एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी दिक्कतें आई, अनेक अड़चनें और समस्याएं खड़ी हुई, पर मैं हरियाणा सरकार को और दिल्ली सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के कारण ये समस्या हमने सुलझाई। विशेष रूप से हमारे NHAI के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। इसकी क्वालिटी के और विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसका जब पहला डिजाइनिंग आया था, तब मैंने उनको प्रश्न पूछा था कि 25 साल सोचकर आपने ये बनाया क्या? जब ध्यान में आया कि ये 25 साल सोच का नहीं है, तो डिजाइन को रिजेक्ट करके उसको नया डिजाइन के रूप में बनाया। वैसे ये डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो ये 563 किलोमीटर है। इसमें टनल्स है, ब्रिजेस है, और इसके साथ साथ हरियाणा को और दिल्ली के जोड़ने वाले अनेक रोड को भी हमने अच्छी तरीके से बनाया, ताकि इसका फायदा जनता को हो। और हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। कभी काम अच्छा नहीं होता तो मैं उनसे नाराज भी होता हूं। इस काम का परीक्षण करने के लिए मैं आया था। उस समय सक्सेना जी मेरे साथ थे। एक एक चीज हमने बारकाई से देखी थी, और एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट करते समय हमारे विभाग के सचिव निवृत्त हुए युद्धवीर मलिक, इन्होंने काफी बड़ा सहयोग ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, अड़चनों को सुलझाने के लिए उनका भी मिला। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली NCR के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। अगर मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की 50% ट्रैफिक जाम की समस्या ये UR2 और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण अगर कम होगी, तो मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा। इन प्रोजेक्ट्स को हमने दिल्ली से जो अलग अलग जगह से भी जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप दिया है, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, और यूरोपियन और अमेरिका की ये 12% है। अभी बीच में बेंगलोर IIM और IIT खड़गपुर और IIT कानपुर, तीनों ने जो अध्ययन किया, उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा। विशेष रूप से NCR में हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बीच इंटरकनेक्टिविटी के लिए नए लिंक रोड का भी हमने अध्ययन किया है। हेवी ट्रैफिक को शहर के बाहर डाइवर्ट करने में मदद होगी। विशेष रूप से दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे को UR2 को कनेक्शन देने की भी योजना हमने बनाई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब से एयरपोर्ट व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी UR2 से मिलेगी। UR2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को भी कनेक्शन है। देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रूट का यात्रा समय जो 2 घंटे से 2.5 घंटे है, वो 45 मिनट हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी होगी, जो पूर्व दिल्ली का बाईपास के रूप में काम करेगा। उत्तर दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग भी होगा। शिवमूर्ति नेल्सन टंडेला मार्ग
पर टनल बनाने की योजना हम बना रहे हैं, जो महिपालपुर और रंगपुरी के ट्रैफिक जाम से राहत देगी। दिल्ली से गुरुग्राम की आवाज को भी सुगम करेगी। एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर मेहरौली गुरुग्राम रोड पर इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। महिलापुर गुरुग्राम तक विस्तार, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से उस टनल का कनेक्शन और नई दिल्ली तथा एम्स को एयरपोर्ट पहुंचाने का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमें दिल्ली के लिए जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके डीएनडी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्च 26 तक पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड लिंक दिसंबर 26 तक पूरी होगी। दिल्ली अक्षरधाम ईपी एक्सटेंट इंटरचेंज, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि उद्घाटन की तारीख मिलने के बाद सितंबर महीने में इसको भी हम इनॉग्रेट करेंगे। दिल्ली में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 6 हम बनाने वाले थे, उसमें से 3 हाईवे का काम पूरा हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाएंगे, वो दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आपके सफर होगी, वो अक्टूबर 2025 तक पूरा होगा। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे, ये हमारा 6 घंटे में हम कटरा पहुंच जाएंगे, ये दिसंबर 26 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं, वो दिल्ली की ट्रैफिक जाम को और प्रदूषण को मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्रयास है। बीच में सुप्रीम कोर्ट तक भी पीआईएल गई थी, पर इन सब का उपाय यही है कि हमें दिल्ली के लिए जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आबादी की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हमारे देश वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, हमारा देश विश्व गुरु बनाए। इसमें रोड की भूमिका, हाईवेज के साथ साथ हमारे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है, जो विजन दी है, उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है कि दिल्ली ट्रैफिक जाम से मुक्त हो, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, ये सपना पूरा करने के लिए हमारे विभाग से पूरा प्रयास कठोरता से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में आए, इस रोड का उन्होंने निरीक्षण किया, टनल का निरीक्षण किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल्ली और हरियाणा सरकार को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में रही हुई सभी हरियाणा की भी जनता को मैं हृदय से इस भव्य प्रकल्पों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।